میں تے پیو او میری رضا تے رب دی رضا وا تانوں پتہ ہے اس گل ماں اس بات پر فخر میں رہ گئی کہ اللہ نے جنت اٹھائی میرے قدموں میں رکھ دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کبھی والدین نے یہ سوچا اس مقام کو وہ پہنچے کیسے؟ اس نقطے کو سمجھئے کہ والدین کو اگر مقام ملا ہے، میاں بیوی کا رشتہ زوجیت کا تھا، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت کب آئی؟ جب اللہ نے یہ پھول تمہیں دیا ہے، تم باپ بنے ہو، پھر رب نے تمہیں گریڈ تمہارا اپ کر دیا ہے، اس سے پہلے تو تم عام بندے تھے، ایک خامن تھے، ایک بیوی تھی، لیکن جیسے ہی اس اولاد کی ذمہ داری اللہ نے تجھے دی اور تیرا مقام اس قدر کر دیا کہ ماں باپ کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا، باپ کی رضا میں رب کی رضا کو رکھ دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا اور جس کی وجہ سے کچھ مقام ملا ہے آپ کو، اس کا بھی کوئی پروٹوکول نہیں۔ گھر میں آئے ہٹلر کی طرح، باپ نے کوئی بات نہیں کی سے بچے گھر آتے ہیں، ابا جی لوگ اب پیو آ گیا، ڈی ایس پی آیا، بچوں سے اتنی تکلف تو اتنی دوری تو نہیں ہونی چاہیے کہ بچے آپ کے گھر آتے ڈر جائیں۔ پھر نقصان کہاں پر ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے بچوں کو وہ پروٹوکول نہیں دیتے جس کا وہ حق رکھتے ہیں۔ اور یار جس نے تیرے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، جس نے تیرے باپ تیری رضا میں رب کی رضا کو رکھ دیا ہے، اس کا بھی کوئی پروٹوکول ہے۔ ہمارے معاشرے میں بگاڑ تب آیا جب ہم نے حقوق والدین کو اتنا بیان کیا، اولاد نے سمجھا شاید اسلام میں ہمارے لیے کچھ ہے ہی۔ آج سے کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، اس تحریک کا ہم بھی حصہ رہے الحمدللہ۔ عظمت والدہ اتنی بیان ہوتی تھی، ساری نعتیں سب کچھ ماں پر، لوگ کہتے یار پتہ نہیں پیو تے نوکری، پیو کا تو مقام ہی نہیں اللہ نے اسلام سے رکھے۔ خطباء سے یہ پوچھ لے کہ یار ساڈا بھی کوئی ذکر ہے نا قرآن حدیث، صبح تو شام تک جب جانے کسی ٹوٹ گئی، ساری زندگی کما لکھ پوترا ہو گیا، ساڈا بھی کوئی حصہ ہے نا قرآن حدیث کہ صرف ماں ہی کہ اسی نوکر ہی جانا۔ پھر یہ اویئرنیس دی کہ نہیں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث یہ بھی ہے کہ والدین کے قدموں کے لیے جنت ہے، اکیلی ماں کے نہیں ہے۔ پھر لوگوں کے اندر شعور آیا کہ ماں کے قدموں کی جنت تو مل جائے گی، داخل کہاں سنا ہے باپ جنت کا دروازہ ہے۔ لیکن ہم والدین اس زوم میں پیو ہاں، عقل نہیں ہے کہ پیو نہ گل کرنا، میں پیو ہاں، اور جس کی وجہ سے تجھے مقام ملا اس کی بھی تو رسپیکٹ ہے یار۔ اس کے بارے میں کبھی سوچیں کہ بچہ تمہارا وقت چاہتا ہے، انہیں اٹینشن دے دو، ورنہ یہ ایسی ٹینشن دے کہ ساری زندگی یاد رکھو۔ آج ہم مقابلے میں ہیں کئی باپ والدین، تو میں تیرا پیو تے نوکر نہیں ہے، وہ کل کو اگر تیرا بیٹا ہارے گا ہار کس کی ہے؟ اگر تو جیت گیا بیٹا ہار گیا، ہارا کون ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ میرے بھائیوں ان کو وقت دیجئے، ان کی ایسی تربیت کیجئے کہ کل کلا آپ نہیں کہیں، یہ کہیں میرے والد گرامی ہے۔ اور جب آپ یہ کہتے ہیں نا میرا پیو، پھر آپ رب کو نکال دیتے ہیں بیچ میں سے کہ میں پیو ہوں، میں ابا ہوں۔ جب یہ بات تم کرتے ہو نا پھر رب کو تم نکال دیتے ہو، جس کام سے رب نکل جائے نا وہ پارٹنرشپ ہی نہیں رہتی۔ آپ یہ کہیں کہ بیٹا اللہ نے مجھے تیری ڈیوٹی سونپی ہے، اللہ نے مجھے تیرا باپ بنایا ہے، جب آپ رب کو لے آئیں گے نا پھر آپ کے کام آسان ہو جائیں۔ آج سب سے بڑی ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم بچوں سے وہ امید لگاتے ہیں جو کر نہیں سکتے۔ کچھ والدین کو تو یہ زوم ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بل گیٹس سے بھی اوپر جائے، اس کا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے۔ میرے بھائی نہ تھکاوٹ کیا کریں، بچوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں۔ ایک بلی سمندر میں جائے، اسے دوڑا نہ جائے، اور مچھلی کے دیکھا میری سپیڈ، اب بلی اپنے حال پر رونا شروع کر دے کہ میں سمندر میں تیر نہیں سکتی، وہ اس کو کہے میں درخت پر چڑھ سکتی ہے، تھکاوٹ ہی نہیں۔ اپریشیٹ کریں۔ ایک بچے نے 100 میں سے 99 نمبر لیے ہیں، آپ کے بیٹے نے 80 لیے ہیں، اس کا پتہ میں نے تو 17 نہیں تھی، شاباش گڈ کر کے آیا، پھر دیکھے اگلی باری رزلٹ۔ جب ڈی گریڈ اتنا کرتے ہیں، اتنا ڈی گریڈ اٹھا کر دیکھ لیں ہسٹری، پچھلے 2-3 سالوں میں میٹرک کے بچوں نے خودکشی کر لی کہ والدین کا پریشر اتنا تھا کہ تو فرسٹ ہی آئے گا، جب سیکنڈ آیا اس نے گولی مار لیا۔ یار اتنا بوسٹ تو نہ کرے پریشر ان کو، والدین ہیں، والدین تو مرنی ہے۔ پہلی بات ان کو پروٹوکول دینا شروع کریں۔ آپ کہتے ہیں ہمارا بیٹا شریم سدیس بنے، میں نے تو نام ہی رکھا ہوگا، لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں
आपके घर में इमाम काबा है, प्रोटोकॉल देंगे जब साहब देंगे तेरे प्रोटोकॉल? तो जो बेटा आपका है जिससे आपने उम्मीद लगाई है, जो बेटी है जब उम्मीद लगाई है तो फिर आप क्यों नहीं करते? हर वालिद वालिदैन की ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे हसनैन की ईमान जैसे, हसन हुसैन जैसे हों, और खुद भी कभी फातिमा रानी बनने की कोशिश की है? मेरे भाइयों, अपने आप के अंदर तब्दीली लाओ। इस जिंदगी का आगाज कहां से होता है? सारे पढ़े लिखे बैठे हैं। जिंदगी का आगाज कहां से होता है? बचपन से। बचपन से होता है। बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, बड़ा होता है। लेकिन इस कायनात का आगाज कहां से हुआ? आप मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, मुझसे अहले इल्म हैं, मैं तो काम का भी नहीं। लेकिन इस दुनिया का आगाज कहां से हुआ? बड़ों से हुआ। सैयदना आदम बड़े थे, क्यों? छोटों के ऊपर बड़े का होना जरूरी है। ये जो करते हैं वो तुम्हारी तरबियत है, तुमने जो सिखा दिया वो करेंगे। और एक बात याद रखिए, बच्चे आंखों से सुनते हैं। बच्चे आंखों से, आप कहां से सुनते हैं? कानों से। लेकिन बच्चे आंखों से सुनते हैं। आप बच्चे को कहते रहें कि सिगरेट गंदी चीज है, बड़ी बुरी चीज है, झूठ पर अल्लाह की लानत है, लेकिन जब आप ही बच्चे को कहते हैं बेटा उसको वो अब्बा जी करनी है, वो देखता है, सुनता नहीं है। 100 दफा कहे सिगरेट बुरी चीज है, जब आप पीते हैं वो देखता है, वो सुनता नहीं है। उनकी आंखें सुनती हैं उसकी बात। जो आप घर में कर रहे हैं, जो मर्जी करते रहे, वो असरात आपकी औलाद पे। बच्चों को प्रोटोकॉल देना सीखें, उनकी तारीफ करें, नहीं तो बाहर परिंदे बैठे हैं, बाहर भेड़िए शैतान की शक्ल में बैठे हैं। जब आप मीठा बोल नहीं ना बोलते औलाद से, फिर बाहर वो शैतान जो भेड़िए बैठे हुए हैं वो मीठा बोल बोलते हैं, उन पर एक्सपेंस करते हैं। फिर बच्चों को, वही बच्चे जो आपके घर में थे, आपके प्रेशर की वजह से, आपकी बदसलूकी की वजह से, आपका टाइम ना देने की वजह से, होता क्या, किसी शैतान के हत्थे चढ़ जाते हैं। फिर वो शैतान उनसे मीठे बोल बोलता है, और तू तो माशाल्लाह हीरा, तेरे प्यो ने तेरी कदर ही नहीं की। मैं यार गल सही, बंदा तो यार। जब आपकी बेटी बड़ी होती है, हमारी बेटी क्यों किसी के साथ भाग जाए? क्यों? घर में कभी उसने किसी ने कहा ही नहीं माशाल्लाह ये तो मेरी शहजादी है, वो तो इतनी प्यारी है मेरी बेटी, ये सूट तुझे कितना अच्छा लग रहा है, तारीफ की गई। क्यों? हम घर बढ़ जाते हैं, माशाल्लाह कुछ वालिदैन तो ऐसे हैं कि वो बच्चे छुप जाते हैं। कभी कहा है अपनी बेटी से कि बेटा आज तो आप शहजादी लग रहे हो, इतना प्यारा सूट, ये कलर आप पर कितना सूट की है? ये भूख होती है उनको अल्फाज की। जब आप नहीं कहते, माहिर जब कहता है वो करता है, सब कुछ है ही। वो प्रोटोकॉल जो शैतान भेड़ियों की शक्ल में बाहर फिर रहे हैं, वो देते हैं आपके बच्चों को और उजाड़ के रख देते हैं। इससे पहले खुद समझिए, उन बच्चों को प्रोटोकॉल दीजिए, उन बच्चों को, उन बेटियों को बताएं कि मैं तेरा वालिद हूं, मैं तेरा वालिद को दरोगा नहीं। हमारे घरों का माहौल क्या है? ओए चाचा है तो अकल नहीं है की करता, ताया आया खोदया की कितने, मां आई इन अकल ही नहीं है। फिर कहते नहीं बच्चा बागी हो, सब कसूर मान। नाराज नहीं होना, बच्चे आंखों से सुनते हैं। जो तुम करोगे वो भरोगे। याद रखना, वक्त बड़ा कलील है, मौजू बड़ा लंबा है, लेकिन मैं एक आपको दरखास्त करूंगा, इल्मी लिहाज से यकीन कीजिए मैं इस काबिल नहीं जिसको आप सबसे पहला काम ये करिए, जब आपने औलाद लेनी ना, रिश्ते का इंतखाब अच्छा। सबसे पहला हक बच्चे का आप पर ये है कि आप उसकी मां अच्छी ढूंढें। हमारे रिश्तों की बुनियाद क्या? फिर कोरोना लगा हुआ, काम सस्ता करोगे। हमारे बच्चे कब पैदा होते हैं? घर में सारा दिन लड़ाई सुकून करने के लिए बेगम के पास और बच्चा पैदा करता है, फिर रिजल्ट नहीं आता। तो बड़ी मुझे बात याद आ गई, वो नजमुद्दीन था, बड़ी शायर थी। अब उसने निकाह के लिए जब औरत को पैगाम भेजा, उसने कहा तू ऐसा बच्चा पैदा कर सकती है, ऐसा बच्चा जो बैतुल मक़दस को पता कर ले। तो भाई औखा काम मत कर। कई औरतों के बाद एक बीबी मिली, उसने कहा हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी ऐसा बच्चा पैदा करूं जो बैतुल मक़दस को फतह कर दे। फिर अल्लाह ने उस मां के पेट से सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा कर दिया, जिसने बैतुल मक़दस को फतह नहीं किया, सिर्फ अय्यूबी सल्तनत कायम कर दी। आज से 100 साल पहले तक उसकी तुमरा कब पहले इंतखाब करें। पहला इंतखाब जब माल की बुनियाद पर
मुंह उठाकर करेंगे फिर अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे। ये वो फैक्ट्री है, ये वो जमीन है जो आपने लेनी है, फिर बीज बोना है, फिर उससे अच्छी फसल लेनी है तो अच्छी माँ का इंतखाब करें। रिश्तों को करते वक्त 100 दफा सोचें। माँ वाले बेटी वाले भी ये देखें, ये जो जिसको मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ किस लेवल का बंदा है, बेनमाज शराबी तो नहीं, माड़ा है तो कोई बात नहीं, ईमान का मजबूत है, दे दो। आज म्यार बदल गया है, फिर बाबा बार गली में बैठा होता है, जब अमीरी पर रिश्ते होते हैं ना, फिर बाबा जी की हकीकत का दसे जी नौ निकलो गढ़ता फिर पुत्रों के पीछे लग जाए। जब रिश्ता इस बुनियाद पर किया था तेरे साथ यही होगा। मेरे भाइयों, आज पहली बात याद रखनी, बच्चों को प्रोटोकॉल नहीं, रिश्ता इंतखाब करते वक्त एहतियात करें। बच्चे आंखों से सुनते हैं। खुदा मैं अपने समेत आपको दर्द दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मर्जी हालात हो जाए बच्चों के सामने कभी ना लड़ाई करें। बंद कमरे में जो मर्जी करें, अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ बच्चों के सामने न लड़ो, उन पर बुरे असरात होते हैं, बड़े बुरे असरात होते हैं। लड़ाई मियां बीवी की हो जाती है, लेकिन जब्त कर जाएं, बंद कमरे में उसको समझाएं। जब आप ईमानदारी से बताएं, कोई बंदा जिसके अंदर गैर तरफ ही मौजूद है, अगर कोई बंदा उसकी माँ को गाली दे, वो क्या करेगा? गाली सब क्या करेगा? जहां तक होगा, अगर आप उसको कत्ल करने की दस्तरस सकते हैं, कत्ल कर दो। और जिस माँ को दिन रात उसके बेटे के सामने गालियां निकालते, फिर क्या तेरी इज्जत करेगा? तेरी बीवी है, उसकी तो माँ है। कुछ ख्याल कीजिए, मामलात जिंदगी में होते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर इमाम बुखारी पैदा हो, फिर अपनी इस्लाह कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हसनैन करीमैन जैसे बच्चों को जन्म दें, तो फिर खुद अली और फातिमा की सुन्नत को रज़ियल्लाहु अन्हुम की सुन्नतों को बताइए। अदरवाइज खाम ख्याली है, कोई दुआ अल्लाह लगा दे, कोई मौजज़ा हो जाए तो हो जाए, हाल कोई नहीं। तो मेरे भाइयों याद रखिए, मौजू की तवालत है, लेकिन वक़्त शेख मोहतरम ने जो दिया था तो पूरा हो गया है। आज से अपने बच्चों को प्रोटोकॉल दें और घर जाकर एक दफा अपने बेटे को सीने से लगाकर ये कहना, बेटा मेरा कुल सरमाया तू है, मेरा कुल सरमाया तू है, तू ही मेरा सब कुछ है। बेटी के माथे पर बोसा देकर कहना, बेटा असल दौलत तो तू है मेरी, और मेरे पास कुछ नहीं। और रोजाना की बुनियाद पर, नहीं तो वीकेंड में मोबाइल को बंद करें, अपने बच्चों के साथ खेलने, टाइम को स्पेंड करें। आखिरी बात, बच्चों में हमेशा इंसाफ से रहें। कुछ बच्चे दिल के करीब होते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरे बच्चों को डिग्रेड कर दिया, समझो तूने अपनी नस्ल को बर्बाद कर दिया। एक शख्स रसूलुल्लाह के पास बैठा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका बेटा है, उसने गोद में बिठाकर बोसा दिया। थोड़ी देर बाद बेटी है, उसने गोद में बिठाया पर बोसा नहीं दिया। आपने कहा तूने इंसाफ नहीं किया। इतनी हसासियत है इस्लाम। एक बच्चा बड़ा दिल के करीब था, कहा या रसूलल्लाह इसको तोहफा दिया है, ये बाग या वो। कहा बाकी बच्चे हैं, कहा जी का उसको दिया, कहा नहीं। कहा मोहम्मद जुल्म पर गवाह नहीं बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए दिल के करीब कुछ बच्चे होते हैं, लेकिन दूसरों को डिग्रेड मत कीजिए। मेरे भाइयों, बच्चे आंखों से सुनते हैं, इस बात को याद रखिए। आज जाकर अपने बच्चों को सीने से लगाकर ये जरूर कहना, बेटा ये तेरे साथ अल्लाह के लिए बड़ी